سخی بے مثال سونا، شان کے رات دسے میرے مصطفیٰ دے ویر دا علی لجپال سونا، سخی بے مثال سونا، علی میرا دین علی ایمان، علی میرا دین علی ایمان، علی دو جہانیاں دیا ولیاں دی جانے، پیراں دا پیرے علی ساڈا دستگیر علی، دسو شان کے ستائی علی اے امیر دا، علی لجپال سونا، سخی بے مثال سونا، علی دا دوارا یارو نبی دا دوارا، علی دا دوارا یارو نبی دا دوارا، علی ساڈا مانے تے دل دا سہارا، پانا تو ہے میرولا کہہ مولا علی دا، بھردا ایک آسا جڑا ہر ایک فقیر دا، پانا تو ہے میرولا کہہ مولا علی مولا، بھردا ایک آسا جڑا ہر ایک فقیر دا، علی لجپال سونا، سخی بے مثال سونا، شان کیڑا دسے میرے مصطفیٰ دے ویر دا۔ سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ جمعۃ المبارک رمضان المبارک کا چوتھا جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کی آج 23 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں اس کا 9واں نمبر ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے۔ دوزخ سے آزادی کا عشرہ، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا دوزخ سے آزادی کا، یہ دوزخ سے آزادی کا عشرہ چل رہا ہے۔ اور اس عشرے کی تاریخی حیثیت دیکھیں، ایک تو 20 رمضان المبارک کی شام کو عالم اسلام میں حضور علیہ السلام کی سنت ادا کرتے ہوئے معتکفین اعتکاف کرنے والے بیٹھتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ اسی طرح اس عشرے کے پہلے ہی دن امیر المؤمنین، امام المتقین، زینت العارفین، سلطان العادلین، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ 21 رمضان المبارک کو آج انہی کو ہی نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے۔ رمضان المبارک میں آپ کی شہادت بھی، آپ کی زوجہ محترمہ کی وفات بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی، اور آپ کی شہادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔
قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، بھلا وہ سعادت مند کشادہ فرما دیا ہے۔ کون سعادت مند؟ وہ سعادت مند شرح اللہ جس کا اللہ تعالیٰ نے صدرہ سینہ اسلام کے لیے کھول دیا ہے۔ صدرہ للاسلام جس کا اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے سینہ کھول دیا ہے۔ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَبِّهِ وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے۔ ذرا دیکھیں غور کریں کہ جس کا سینہ اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، شرح صدر اسے مل جاتا ہے، سینے میں سینہ کھول جاتا ہے اسلام کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ نے جیسے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل اسلام کے لیے کھول دیا، ابو لہب اور اس کی اولاد کے لیے دل سخت ہو گئے اسلام کے لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سینہ بارک اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کشادہ کر دیا۔ آپ کی ولادت بھی 13 رجب المرجب کو جمعۃ المبارک میں کو ہوئی۔ اپنی والدہ مکرمہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی گود میں آپ تشریف لائے۔ حرم شریف میں آپ کی پیدائش ہے، اس سے پہلے کہ کسی کی پیدائش جو ہے نا وہاں پر نہیں ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہے۔ آپ کا نام نامی اس میں گرامی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، آپ کی والدہ محترمہ کی اپنی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد کی گود میں آئے تو انہوں نے اپنے نومولود کا نام، اس بچے کا نام، اپنے بیٹے کا نام اپنے باپ کے نام پر اسد رکھا۔ آپ کے نانا کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا کا نام اسد ہے۔ جس وقت رکھ لیا، لیکن حضرت ابو طالب جس وقت آئے اس پر راضی نہ ہوئے، انہوں نے اپنی زوجہ سے فرمایا کہ آج رات ہم جبل ابو قبیس پر، ابو قبیس پہاڑ پر رات ٹھہریں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ ہمیں بچے کا نام عطا فرما دے، اس کے نام سے آگاہ فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو طالب چلے گئے، رات وہیں پر بیٹھ کر، پہاڑ پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے۔ چہرہ مبارک نیچے تھا، اچانک آواز آئی، نظر اٹھا کر دیکھا تو ایک تختی وہاں پر پڑی تھی۔ اس تختی کو اٹھا لیا، اس تختی پر لکھا ہوا تھا علی۔ اس تختی کا نام پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ تختی جس وقت بیت اللہ شریف میں لٹکا دی گئی، جس وقت حجاج بن یوسف نے بیت اللہ شریف پر حملہ کروایا، اس کے بعد وہ تختی کہیں گم ہو گئی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام لکھی گئی، غائب ہو گئی، ملی نہیں۔ جس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کہ جس طرح اور طواف کعبہ میں کر رہی تھی، علی پیدا ہوئے، نرگسیں ہوا تو میں وہیں پر بیٹھ گئی، دیوار شک ہوئی، میں
میں تب چلی گئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری گود میں آ گئے، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی۔ آنکھیں اس وقت کھولی جس وقت حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک سامنے تھا، بلکہ وہ پریشان تھے کہ بیٹا تو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھول رہا۔ ایک دن پہ آگے دوسرے دن حضور علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، کوئی چیز نہ کھائی، کوئی چیز پی بھی نہیں، دودھ بھی نہیں پیا، لیکن کیا ہوا کہ جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے یہ میری والدہ ہے، کیونکہ آپ کی چچی تھی، انہوں نے یہ آپ کو پالا تھا۔ آپ کے دادا کے بعد حضرت ابو طالب کی کفالت میں حضور علیہ السلام آ گئے تھے، تو پھر وہیں پر آپ اپنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو اپنی والدہ کہتے تھے کہ جس وقت حضور علیہ السلام تشریف لائے تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، تو حضور علیہ السلام نے جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اپنی گود میں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول دی۔ اس سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کہ حضور علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھا تو پھر جو ہے اپنی آنکھیں کھول دی۔ حضور علیہ السلام اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علی منی وانا منہ وهو ولی کل مؤمن، بے شک علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں اور وہ ہر مومن کے دوست ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت حضور علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا کہ یہ حقیقت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مردوں میں سب سے پہلے، لیکن تھے بچے، ان کی ایک حقیقت تھی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی، کلمہ پڑھا، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، پھر اسی طرح آزاد مردوں میں فقہاء اکرام، محدثین اکرام، پھر یہ ان کی تصریح اس طرح کرتے ہیں کہ عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، آزاد مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اسلام قبول کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عمر 8، 9 یا 10 سال تھی جس وقت حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اسی طرح حضرت غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اس طرح موالیوں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور علیہ السلام کے سمجھ لو کہ آپ کے غلام ہی تھے، لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو عنایت ہبہ کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا بیٹا بنا دیا تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق حضور علیہ السلام کی شان کے متعلق بہت سے فرامین ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینہ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیأت الباب، کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں علم کا شہر ہوں، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، بس جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو وہ دروازے پر آئے۔ جو علم حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسے پہلے دروازے پر آنا پڑے گا، کیونکہ دروازے سے گزر کر جو ہے نا، اسی طرح ایک شخص نے سوال کر دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبرائیل علیہ السلام کتنی مرتبہ آپ کے پاس آئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں فرمانے لگے حضور علیہ السلام کے پاس اگر 60 مرتبہ آیا تھا، لیکن فرمایا کہ 120 مرتبہ، کیونکہ دروازے سے گزر کر کوئی یہاں آ رہا ہے، ایک مرتبہ آ گیا ہے پھر واپس بھی جانا ہے، وہ واپس جا رہا ہے تو وہی دروازے سے گزر کر جا رہا ہے، 2 مرتبہ جو ہے نا حضور علیہ السلام نے
बाबू अली इसके दरवाजा है, जिसे अब हिकमत क्या है, जिस हिकमत के बारे में अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैरन कसीरा, जिसे हिकमत अता की गई, यानी जिस शख्स को अल्लाह ताला ने हिकमत अता कर दी है, यकीनन वो बहुत ही भलाई अता की गई है, बहुत बड़ी उसे भलाई अता की गई है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला दारुल हिकमत, मैं हिकमत का घर हूँ, वो अली जो बाप हुआ, और अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हिकमत के दरवाजा है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मुराबीन हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में। अली के हुब्बु अली इब्न अबी तालिब याकुलु ज़ुरूबा कमा ताकुलु नारुल हतमा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अली और मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अली की मोहब्बत अंदर होगी, अली की मोहब्बत होते हुए फिर जैसे जो गुनाह होंगे वो अली की मोहब्बत और गुनाहों को ऐसे खा जाती है जिस तरह आग लकड़ी को खा जाती है कि आग में लकड़ी डालें, आग जो है लकड़ी को खा जाती है, सब देती है, बचती ही नहीं लकड़ी, आग में जल जाती है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली और मुर्तज़ा की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, या अली अन्नास मिन शजरिन शत्ता व अना अब्दा मिन शजरतिन वाहिदतिन। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग मुख्तलिफ शजरों से हैं। क्या फरमाया? या अली अन्नास मिन शजरतिन शत्ता, ए अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, लोग मुख्तलिफ शजरों से हैं, उनका शजरा जो है ना मुख्तलिफ है, लेकिन व अना अब्दा मिन शजरतिन वाहिदतिन, और मेरा और तेरा एक ही शजरा है। हुजूर अलैहिस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, अली लोग दूसरे बहुत से शजरों से हैं, लेकिन मेरा और आपका जो शजरा है वो एक ही शजरा है। इसी तरह हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ला युहिब्बु अलिय्यन मुनाफिकन वला यबगहुहु मुमिनुन। अली से मुनाफिक मोहब्बत नहीं कर सकता और अली से मोमिन बुग़्ज़ नहीं रख सकता। यानी जिसके दिल में अली की मोहब्बत होगी वो समझ लो वो मोहब्बत ही उसे जो है ना पार लगाएगी। जो मोमिन होगा अली से बुग़्ज़ नहीं रखेगा, और जो मुनाफिक है वो अली से मोहब्बत नहीं कर सकता। अली से मोहब्बत करने वाला भी मोमिन होगा और अली से बुग़्ज़ रखने वाला मुनाफिक होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस तरह फरमाया, अन-नज़्रु इला वजहिन इला इबादतिन, अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। अली के चेहरे को देखना भी इबादत है। एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे की तरफ देख रही है, और चेहरे की तरफ देखते हुए क्या कह रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अबू बकर से पूछते हैं, ए अबू बकर, ए सिद्दीक, क्या बात है, मेरे चेहरे की तरफ देखकर तुम जो है मुस्कुरा रहे हो, इसकी वजह क्या है? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क्या इरशाद फरमाते हैं, ए अली, हुजूर अलैहिस्सलाम का फरमान है, अन-नज़्रु इला वजहि अली इबादत, अली के चेहरे को देखना इबादत है, लिहाजा मैं तेरे चेहरे को देखकर इबादत कर रहा हूं। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अली के चेहरे को देखकर क्या कर रहे थे? इबादत कर रहे थे। इबादत ये क्योंकि अली के चेहरे को देखना इबादत है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के चेहरे को देखकर, इस तरह हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपकी शहादत की खबर भी पहले ही दे दी थी कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत एक मर्तबा हजरत अली और मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ फरमाते हुजूर अलैहिस्सलाम के पास, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अशद्द अन्नास रजुलान, दो शख्स सख्त बदबख्त हैं। आपने फरमाया दो शख्स सबसे बड़े बदबख्त हैं। ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे पहला बदबख्त कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम के पूछने पर हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमा रहे हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला जो बदबख्त है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अली अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे पहला बदबख्त वो है
बदबख्त कौन है? दो जो सबसे आपने फरमाया दो शख्स ऐसे हैं जो बड़े बदबख्त हैं। एक वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूचे काटी थी। सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी क्या ऊँटनी थी? वो अल्लाह ताला के हुक्म से अल्लाह ताला ने जिस वक्त आपकी कौम ने आपसे बोझा मांगा था और बोझे में इन्होंने क्या अपनी ख्वाहिश की थी, आपकी कौम ने ये कहा था कि इस पहाड़ में से ऊँटनी को निकाल कर दिखा दे। ऊँटनी को निकाल कर आपने अल्लाह ताला ने आपका बोझा बना दिया। ऊँटनी वहां से निकल आई, लेकिन ऊँटनी के लिए कुछ उसूल और ज़वाबित थे, वो कायम थे। ऊँटनी जो है एक दिन वहां पर पानी का एक बहुत बड़ा जहां पर पानी खड़ा हुआ था कुआं था, एक दिन ऊँटनी पानी पीती थी, बाकी सब जो है ना लोग उस दिन पानी नहीं देने के लिए जाते थे। जिस वक्त उन्होंने ये देखा ऐसा ऐसा हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुखालफत शुरू कर दी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जिस ऊँटनी की कूचे काटने वाले को हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे बड़ा बदबख्त वो है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फिर पूछने लगे, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, सबसे बड़ा बदबख्त वो हो गया जो सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूचे काटी थी। और दूसरा शख्स कौन है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरे बदबख्त अल्लाह और उसका रसूल ही सबसे ज्यादा जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जो दूसरा बदबख्त होगा वो तुझे जो है ना जो शहीद करने वाला होगा, तुझे कत्ल करने वाला होगा, वो जो है दूसरा बड़ा बदबख्त होगा। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने कि फरमाया कि एक बदबख्त वो जिसने सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के पांव काटे थे, और दूसरा बदबख्त वो है जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करेगा। वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी शहादत इसी वाहे मुबारक में हुई। वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिस वक्त अगर कोई फैसला या कोई इस तरह का काम जो है, जिस वक्त आप अमीरुल मुमिनीन बल्कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो है ना सबसे ज्यादा, या उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जो है ना आप जो है उनका दाएं बाजू थे, मशवरे भी देते रहते थे, सारा काम करते रहते थे। कि जिस वक्त कोई ऐसा काम होने लगता हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रोक देते कि एक मरतबा हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसला कर रही हैं, लेकिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, वो किसी बच्चे के बारे में फैसला था। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जो बच्चा पैदा हुआ है वो साबित नस्ब है, अपने बाप का है, उसके बारे में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला, वो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कि जिस वक्त एक मरतबा तशरीफ फरमा थे, दो औरतें आ जाती हैं, दो औरतें आकर क्या कहती हैं? एक औरत कहती है कि एक बच्चा एक होता है, एक कहती है बच्चा बच्चे दो फैसले आए, एक मरतबा एक बच्चे के बारे में फैसला, एक मरतबा जो है ना दो औरतों के बारे में फैसला आ गया। तो दो औरतें और एक बच्ची और एक बच्चा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आ गए, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास आ गए। जिस वक्त एक औरत कहती थी बेटा मेरा है, दूसरी कहती थी कि बेटा मेरा है, लेकिन बेटी के बारे में कोई अपने बारे में नहीं कहता था, बेटी उसकी है, बेटा मेरा है। ये फैसला हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने क्या फैसला फरमाया? फरमाया तो प्याले मंगाए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, प्याले देकर उन्हें दोनों औरतों को भेज दिया एक जगह पर, पर्दे वाली जगह पर, और आपने फरमाया दोनों जो है ना अपने अपना दूध निकाल कर लाए, दोनों औरतें अपना अपना दूध निकाल कर लाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने देखा कि जिसका दूध गाढ़ा था, हज़रत अली रज़ियल्लाहु फैसला फरमा दिया कि बेटा इसका है, और जिसका दूध पतला था हज़रत अली रज़ियल्लाहु फरमा दिया कि उसका बेटा उसकी बेटी है। साहिबी जो नज़दीक बैठे हुए थे अब कहते हैं अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फैसला आपने कैसे किया है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आयत मुबारक फरमाकर जिसमें बेटी और बेटे का हिस्सा फरमाया गया है कि बेटी के वालिद के इसमें हिस्सा है, वालिद की जायदाद में बेटे के हिस्से दो होते हैं, बेटी का एक होता है, यानी बेटे का एक हिस्सा बेटी का आधा हिस्सा होता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस आयत मुबारक फरमा दिया कि अल्लाह ताला ने ये फैसला जो है रोज़े असद से रख दिया है कि बच्चा जो बेटा
इस बच्चे के दो टुकड़े कर देते हैं, दो टुकड़े कर देते हैं, आधा वो ले जाए आधा वो ले जाए। जिसका बच्चा था वो तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, जिसका बच्चा नहीं था उसने कहा कि ठीक है इस तरह कर दो, आधा आधा करके हमें दे दो। लेकिन जिसका बेटा था वो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बात है, अमीरुल मोमिनीन मेहरबानी फरमाए इस बच्चे के दो टुकड़े करके उस औरत को दे दे जो असल वालिदा थी। वो कह रही थी ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेहरबानी फरमाए इसके दो टुकड़े रख ले, उसे दे दे। लेकिन जो वालिदा नहीं थी वो कहती थी कि इसके दो टुकड़े कर दे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया जिसको एहसास है कि मेरे बेटे के टुकड़े ना हो उसे जो है ना उसका बेटा दूसरे देगा। तो अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिस वक्त अपने फैसले के बारे में आपके बारे में आया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मर्तबा कूफा में एक आपकी सिरा गुम हो गई, सिरा गुम हो गई। सिरा जिस वक्त गुम हुई कुछ दिनों के बाद वही सिरा एक यहूदी के हाथ में हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु देख रही। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाया कि ये सिरा मेरी है। उसने कहा कि ये सिरा मेरी है, चलो फैसला करवाते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फैसला लेकर काजी खुद जो है ना खलीफा है, खुद वक्त के खलीफा है, खुद फैसला नहीं कर रहे, लेकिन काजी के पास चले जाते हैं। काजी के पास जाकर अपना फैसला करवाने के लिए अपना मुद्दा बयान करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि ये सिरा मेरी है। दूसरा तो था यहूदी, उस पर इस्लाम के उसूल और ज़वाबित लागू नहीं होने थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुसलमान हैं, उन पर जो है ना उसूल और ज़वाबित इस्लाम के लागू होने थे, दूसरे यहूदी पर लागू नहीं। यहूदी से नहीं पूछा कि ये सिरा किसकी है, लेकिन हज़रत अली से पूछा सिरा अगर तेरी है ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी सिरा के लिए इसका कोई गवाह पेश करें कि ये सिरा आपकी है। आपने फरमाया मेरा गुलाम है, आपने फरमाया कि मेरा बेटा हसन जो है गवाह है कि मेरी ये सिरा मेरी है। काजी फरमाने लगे ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आपकी जगह वालिद की गवाही बेटा नहीं दे सकता। वालिद की गवाही बेअज़्व शरा वालिद की गवाही बेटा नहीं दे सकता, कोई और गवाह पेश करो। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मेरा बड़ा गुलाम, उसका नाम लेकर फरमाया कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि मेरा वो गुलाम जो है वो इस बात का गवाह है कि ये मेरी है। आपने फरमाया वो गुलाम भी आपके ताबे है। काजी फरमाने लगे ए अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वो गुलाम भी आपके ताबे है, आपकी गवाही नहीं दे सकता। लिहाजा ये सिरा जो है ना उस यहूदी की है। जिस वक्त यहूदी ने मुसलमानों का फैसला देखा उसी वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। वो फैसले हो गए। वो अली रज़ियल्लाहु तआला आपको 21 रमज़ान मुबारक को शहीद किया गया। इब्न मरजम ने सुबह के वक्त, सुबह की नमाज के वक्त 21 रमज़ान मुबारक को आपको शहीद कर दिया। कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि है अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक तो वो बदबख्त उस बदबख्त ने जिसने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पूछे कर दी थी, और दूसरा बदबख्त वो होगा जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को शहीद करेगा। मेरे मुसलमान भाइयों कि सहाबा इकराम इनकी ज़िंदगियों को पढ़कर, इनके हालात को पढ़कर हमने अपने आप को सेट करना है। सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखकर, सहाबा इकराम की कि किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, कैसे कैसे हमें तो इस्लाम जो है एक आराम के साथ जो है ना थाली में रख कर जो है ना दे दिया गया है। लेकिन पहले सबसे पहले उन्होंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने या हुज़ूर के सहाबा ने कितनी जो है ना तकलीफें सही थी उस इस्लाम को जो है ना ऊपर उठाने के लिए, इस्लाम को सब बुलंद करने के लिए। इसलिए ये रमज़ान मुबारक मेरे मुसलमान भाइयों हमें चाहिए हम इस रमज़ान मुबारक में जो है ना एक तो ये अहद करें कि जिस तरह रमज़ान मुबारक में हम नमाज़ें पढ़ रही हैं, इस तरह सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को देखकर सहाबा इकराम की उनकी एक नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के सहाबा की एक नमाज भी कज़ा, बल्कि उनके वक्त का फर्ज और वक्त का मुस्तहब भी कज़ा नहीं होता था। अगर उनके किसी एक मुसलमान भाई की, किसी एक सहाबी की जब जमात नमाज
जिंदगियों का हमारे लिए मिसालें हैं, मशाले राह है। उनको देखकर जो है ना हमने अपने आप को जो है संभालना है कि हमें एक इस्लाम जो है ऐसे मिल गया है, इस तरह मिल गया है। उन्होंने कैसी कैसी तकलीफें उठाई थी, सहाबा इकराम ने कितनी कितनी तकलीफें उठाई थी। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ले ले, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसी तकलीफें उठाई कि उस वक्त पत्थरों पर या रेत के जर्रात पर उन्हें लिटा दिया जाता था, बेटें रोक दी जाती थी और उन्हें जो है ना उन्हें कहा जाता था कि इस्लाम को छोड़ दो। लेकिन इस्लाम में अगर हमें थोड़ी सी कोई तकलीफ आ जाए तो हम जो है नमाजें भी छोड़कर बैठ जाते हैं। नमाज जो हर वक्त पांचों वक्त हमारे लिए फर्ज है, हमारे लिए जरूरी है, जरूरी है, इसको अदा करना है। थोड़ी सी तकलीफ आ जाती है, ये नहीं देखा जाता कोई बीमार है, चारपाई पर पड़ा हुआ है, कोई घर में है, किसी हालत में भी नमाज जो है ना छूट नहीं है। हर हाल में नमाज जो है पांचों वक्त अदा करनी है। ये इस तरह फायदा हमारा है, ये नमाज अदा करने पर, ये रोजे रखने पर फायदा हमारा है, वरना इसकी सजा होगी, इसकी सजा होगी। इसलिए सहाबा इकराम की जिंदगियों को देखकर जो है ना कि उनमें तकलीफें कितनी सही, लेकिन फिर भी वो नमाज़ें अदा करते थे। हमें थोड़ा सा हमारे पास पैसा आ गया, हज़रत अबू उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास कितना पैसा था, कितना जो है ना वो जो है ना अल्लाह के रास्ते में दिए, लेकिन फिर भी पांचों वक्त नमाज। हमारे पास थोड़ा सा पैसा आ जाते हैं, हम नमाजें छोड़कर मस्जिदों में बैठ जाते हैं, घरों में जाकर बैठ जाते हैं, मस्जिद में आते ही नहीं है, फिर नमाज जो है घर में पढ़ लेते हैं। फिर मुसलमान भाई जरा गौर करो, ये रमजान और मुबारक के लम्हात जो गुजर रहे हैं, रमजान और मुबारक वाले लम्हात हमारे लिए ये एक मुसाफिर की तरह है कि ये जैसे मेहमान की तरह है। जिस वक्त ये चला जाएगा, इसकी सारे की सवारी नमाज में चले जाएंगे। जो सुन्नत हम अदा करते हैं, जो हम फर्ज अदा करते हैं, सुन्नत फर्जों के बराबर मिल जाता है, नफल पढ़ते हैं फर्ज के बराबर मिल जाता है। एक एक नेकी का सवाब दुगना चुगना 700 गुना तक जो है मिलता है। फिर ये नमाज चले जाएंगे, फिर ये शयातीन जो हम कैद कर दिए गए हैं, वो शयातीन जो है छूट जाएंगे, उनकी सब चीजें जो है खोल दी जाएंगी, उनकी हथकड़ियां खोल दी जाएंगी। फिर जो है आप क्या करेंगे? अब तो वो बंधे हुए हैं, अब उनको कैद कर दिया गया अल्लाह ताला के हुक्म से, लिहाजा उनके कैद होते हुए जो है ना हम अपने आप को रास्त पर लाएं, पांचों वक्त नमाज में बजबाद अदा करें, मस्जिदों में अपने आप को इस्लाम के मुताबिक ढालें। मौत का पता नहीं है कि कितने दिन रहनी है, कितने दिन हमने रहना है। जिस वक्त मौत का हम सोच रहे होते हैं कि जिस वक्त जो है ना बुढ़ापा आएगा फिर हम जो है ना तैयारी कर लेंगे, वो नहीं, उस शख्स के बनी इस्राइल के शख्स की तरह जिसे 1000 साल जिंदगी दी गई, वो कहता था कि मैं जो है ना कुछ और जो है कर लेता हूँ, आखिरी साल जो है 100 साल जाकर जो है ना इबादत कर लूंगा। जिस वक्त 900 साल गुजर गए, 100 साल हम भी उसी तरह हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। फिर जिस वक्त 100 साल कहने लगा कि 900 साल और 90 साल जो है या 90 साल मैं कर देता हूँ, फिर 1 साल बाद जो है ना जो रह जाएगा उसमें तौबा कर लूंगा। इसी तरह वो साल जो है वो भी गुजर गया, 11 महीने गुजर गए, 1 महीना आ गया, 29 दिन की कर देता हूँ, आखिर बहुत आ गई। हम भी हाथ धरे बैठे हैं कि जिस वक्त आप बूढ़े हो गए उस वक्त आप जो है ना तौबा इस्तग़फ़ार कर देंगे, फिर जो है दुनिया से चले जाएंगे। किसी का कुछ पता नहीं है। अपनी आखिरत को संवार लो, ये संवारने के दिन हैं, ये रातें जो हमें मिली हैं, ये रातें लैलतुल क़द्र वाली रातें हैं जिनको अल्लाह ताला ने पोशीदा रखा हुआ है। ये आखिरी माह में आखिरी अशरा में जो है ना लैलतुल क़द्र वाली रात है, जिनके बारे में आया है कि ज्यादातर तो यही फरमाते हैं फुक़हा इकराम, वो हक़ीक़ीन इकराम, ये 27 रजब वाली 27 रमजान मुबारक वाली रात होती है, जिस रात में कुरान पाक उतारा गया है। इस तरह अक्सर बुजुर्गान दीन का यही कौल है कि 27 रमजान मुबारक। अभी मेरे कायम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं कसम खाकर कहता हूँ कि लैलतुल क़द्र 27वीं रात है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम जो है इन रातों में इबादत करके जो है ना अपने आप को जो है ना मालिक की बारगाह में, जिस वक्त फरिश्ते आए अल्लाह ताला के हुक्म से, फरिश्ते जो उतरते हैं तनज़्ज़लुल मलाइका वरूह, वो जो फरिश्ते उतरते हैं नीचे आते हैं जमीन पर, वो आकर देख रहे होते हैं, इधर उधर फैल जाते हैं, उनके हाथ में 4 झंडे होते हैं। एक झंडा वो बैतुल्लाह शरीफ पर
دوسرا جو ہے نا سبز گنبد پر لگا دیتے ہیں، تیسرا مسجد اقصی پر لگا دیتے ہیں، چوتھا پورے صحرا پر لگا دیتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ زمین پر پھیل جاتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کر رہا ہو، قیام بھی کھڑا ہو، کوئی شخص جو ہے ایسا جو نوافل پڑھ رہا ہو، تلاوت قرآن کر رہا ہو، ذکر اذکار کر رہا ہو، پھر جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، اس کے ساتھ مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ جس وقت وہ مالک کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہے، اس مالک کی بارگاہ میں دعا مانگنے پر فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ جس وقت وہ فرشتے صبح صادق تک زمین پر رہتے ہیں، جس وقت وہ چلے جاتے ہیں، آسمان والے فرشتے ان سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تم کہاں گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں ہم جو ہے نا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لیلۃ القدر کی رات آئی تھی، اس رات میں ہم زمین پر گئے تھے، اور انہیں جو ہے نا وہ پوچھتے ہیں انہیں کیسا پایا ہے؟ بے شک پھر وہ ان سے پوچھتے ہیں، فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جو فرشتے زمین سے ہو کر جاتے ہیں ان کے نام لے کر جو ہے نا فرشتے بتاتے ہیں فلاں فلاں شخص بھی پھر مالک کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا، تلاوت قرآن کر رہا تھا، اللہ کا ذکر کر رہا تھا، درود شریف پڑھ رہا تھا، فلاں فلاں کام کر رہا تھا۔ جس وقت آپس میں فرشتے جو ہے کہتے ہیں ان اللہ تعالی، اللہ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں اے جبریل بتا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ ان اللہ تعالی غفر لصاحبہم وشفعہم فی طالعہم، اللہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کو ان کو بخش دیا ہے، ان کے گناہوں کو ختم کر دیا ہے۔ وہ فرشتے آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ میرے مسلمان بھائی، ذرا یہ راتیں جو ہمیں ملی اور اس رات میں ہمارا تلاوت قرآن مجید بھی ہوتی ہے نا، نماز تراویح میں